کہ laws do exist اور وہ نہیں ہے. اور ایک میرے بھائی محمد حسین آپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتنی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ رولز آف بزنس سر زیادہ تر قوانین جو بنے ہیں جو اس اسمبلی نے پاس کیے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. رولز آف بزنس ہم نے آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں اور ٹریجری سے دوبارہ آپ کی توجہ سے کہ ہر قانون میں یہ ڈال دیں ڈو مور کہ نہیں ڈو مور نہیں کہ رولز آف بزنس ول بی فریم ود ان 45 days of the law being passed, otherwise the concerned head of a department shall be demoted. میں کہتا ہوں 45 دن میں بن جائیں گے رول. ڈال دیں یہ قانون میں, ہر قانون میں ڈال دیں, دیکھتے ہیں کیسے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ لا کو پاس ہوئے ڈال کے دیکھیں, آپ چیک کریں. یہ شکریہ آپ کا کیا آپ نے نہیں, اٹس اے گڈ آئیڈیا فرام یو. وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈال کے دیکھیں. جی سر کرتے ہیں سر اس میں. اوکے, ناؤ اجازت ہے کہ میں سوال جواب شروع کروں. کوشچن نمبر 1163 سعید احمد صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 1163. Sir, answer may be taken as read. سر میرا سوال تھا کہ یہاں پہ موٹر وہیکل ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اضافی پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور کرپشن بھی ہوتی ہے. تو مجھے خود کافی شکایات موصول ہوئی, مگر وزیر موصول فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے. سر پہلا سپلیمنٹری کوشچن میرا ہے کہ وزیر صاحب نے فرمایا جواب میں کہ سارا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہے اور کوئی کرپشن نہیں. تو کیا آپ یہ بتا سکتے کہ پورا سسٹم کب سے مکمل یعنی کمپلیٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے؟ سر یہ کمپیوٹرائز اسکیم جو تھی یہ شروع کی تھی ہم نے 2009 میں اور یہ کمپلیٹ ہوئی ہے 2012 میں. تب سے پورا جو اپنا سسٹم ہے سینٹرلائزڈ ہے. آپ کہیں بھی پورے سندھ میں کراچی سے لے کر کشمیر تک کدھر بھی چلے جائیں اپنی گاڑی رجسٹر کرا سکتے ہیں, ٹیکس بھر سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے. اور جہاں تک بھائی کا سوال ہے کرپشن کے حوالے سے, سر جو گورنمنٹ کی چالان اور فیس بھری جاتی ہے اینٹی کرپشن بھی تو ہے نا وہ سر تھرو پے آرڈر ہوتی ہے. تو یہ جو بھی ریٹس اینٹی کرپشن کیا کر رہی ہے سر؟ اینٹی کرپشن کچھ ہوگا تو کرے گی نا سر. اینٹی کرپشن سر اگر کوئی کرپشن ہوگی تو اینٹی کرپشن آئے گی نا. کیا کریں؟ جی جی سر منسٹر صاحب کو کچھ پتا ہے کرپشن کے بارے میں تو پھر آپ بتائیں نا اس کو. سر ان کو بھی پتا ہے, یہ اگلے سال نہیں پتا ہے نا, وہی آپ ہی سے تو پوچھ رہے ہیں. سر سب کو پتا ہے 35 امپورٹڈ اور 477 کابلی گاڑیوں کو, کابلی پلاؤ, کابلی گاڑیاں, پلاؤ نہیں سر کیونکہ ان کا کام گاڑیوں کا ہے. کابلی پلاؤ ہم کھاتے تو رہتے ہیں. کابلی گاڑیوں کو رجسٹرڈ کرایا تھا اور اس پہ ایک انکوائری بیٹھی تھی جس کے ہیڈ تھے اس وقت کے ڈی جی ایکسائز شبیر شیخ صاحب, اور انہوں نے پوری انکوائری تشکیل لی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ ان سے غیر قانونی رجسٹریشن کی واپسی اور واجب الادا ٹیکس وصول کرنے کی سفارش کی گئی تھی کہ جو ٹیکس کے پیسے ہیں واجب الادا وہ ان سے وصول کی جائے اور جو گاڑیاں غیر قانونی رجسٹرڈ کی ہے وہ بھی واپس کی جائے. لیکن سر یہاں پہ الٹا ہوتا ہے, کیونکہ جب اس وقت کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے کے منور علی شاہ, حال ہی میں اس کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کی پوسٹ پر تعینات کیا گیا ہے. خیر میرا دوسرا سپلیمنٹری سوال ہے سر کہ کون سا سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے اور وہ کہاں سے پرچیز کیا گیا اور اس کی لاگت. یہ تو اتنے سارے سپلیمنٹری ہو گئے. یہ ایک ہی کنسرن ہے سر. یہ صفایا کمپنی ہے جس سے یہ سافٹ ویئر پرچیز کیا گیا. لاگت کا اماؤنٹ اس وقت مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وہ میں پوچھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جہاں تک بھائی نے باتوں میں بولی کابلی گاڑیوں کی بات, سر بالکل انکوائری بیٹھی تھی اور اس میں 457 نہیں تھے, وہ اراؤنڈ 45 کارز جو نکلی تھی اس میں, اور وہ گاڑیاں کینسل بھی کر دی گئی. اور یہ ہوئی تھی ڈیورنگ دی پیریڈ آف کابلی گاڑیاں جو ہیں یہ کابل سے آتی ہیں سر, یہی بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے کابلی بناتے ہیں. پتہ نہیں سر وہ کہاں سے آتی ہیں. سعید احمد کو پتا ہوگا. کراس دا بارڈر آتی ہیں سر.
सर तो इस नहीं पर वो बिल्कुल काबुली शायद वो यहाँ पे प्लांट लगा होगा काबुली, जहाँ बैठ के काबुली बिल्कुल गाड़ियाँ सर, इस पर बनाते हैं। इंक्वायरी भी हुई थी और भाई जो बोल रहे हैं कि हालिया में उनको अगर एडिशनल की पोस्ट दी गई है तो भाई मेरे उनका प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन के तहत दी गई है। तो जिस जिसका प्रमोशन होगा उसको अपनी जारी बात है, उसका प्रमोशन तो ड्यू है, प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन दे दिया गया सर। वो डिजर्व करता है बिल्कुल सर। उसकी जी, सर, प्रमोशन के deserve हिसाब करता से। है। ऐसे लोग ही डिजर्व करते हैं। अगर आप उससे जेलस हैं तो वो और बात है। नहीं सर, लेकिन, मैं तो आज तक मिला अब भी उस नहीं। गरीब मेरा की कोई- प्रमोशन हुई है तो जरूर वो और अच्छी पोस्ट पे जाएगा। अच्छी बात है सर, ऐसे ही लोग अच्छी पोस्टों पर जाते हैं। ऐसे ही लोग तो जाते हैं। हाँ सर, ये सिस्टम ही है सर। तो सर मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री सवाल है, तो एक तो मिनिस्टर साहब ने अच्छा हुआ सारे कंप्यूटराइज सिस्टम में जो हम खामियां बताना चाह रहे थे वो खुद तस्लीम कर चुके कि हाँ ये हुआ था, जबकि 2012 से अगर सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटराइज सिस्टम था तो ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। तो मेरा जो क्वेश्चन था और जो सवाल था, जो इन्होंने नो लिखा था कि नो ये ट्रू नहीं है, तो वो तो साबित हो चुका है। सर मेरा आखिरी यानी तीसरा सप्लीमेंट्री सवाल इन मिनिस्टर साहब से है कि सिंध एक्साइज की वेबसाइट पर आप किसी भी गाड़ी का, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर जब डालते हैं तो उसमें उस ऑनर की पूरी डिटेल वहाँ पर शो होती है, मतलब आ जाती है। तो इनसे मेरा सवाल है कि क्या ये वो प्राइवेसी को ब्रीच करने का मामला नहीं है कि अगर किसी की मुकम्मल तफसीलात वहाँ पे आती है तो इसमें इनके क्या इकदाम है मिनिस्टर साहब के? सर अगर मेरे भाई साइट खोलें प्रॉपर्ली तो देखेंगे तो सिर्फ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स कब पे हुआ है और कब तक पेड है और ओनर का खाली नाम, और कुछ नहीं देते हैं हम उसमें, ना उनका एड्रेस होता है, कुछ भी नहीं होता है, नथिंग इज अवेलेबल। तो इसको प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए ये 3-4 चीजें डाली गई कि जिसका मतलब ओनर का नाम, क्योंकि जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो इंस्टेड कि वो सिविक सेंटर आए, मालूम करे कि उसका टैक्स अप टू डेट है नहीं है, खाली वेबसाइट पर चला जाए तो ही फाइंड आउट देन एंड देयर के कब से कब तक का टैक्स इसका फीड हुआ हुआ है। वैसे अगर आपने कोई काबुली गाड़ी देखी है तो बताएं। सर आपको चाहिए क्या? मुझे अल्लाह न करे मैं ऐसी गाड़ी रखूं सर जिंदगी में नहीं रखी। सर वो 45 गाड़ियों में से 43 गाड़ी इसके शोरूम से आई नहीं थी। वो ऑफर कर रहे हैं। आपने पूछा है कि कहीं देखिए, सईद तो साहब मैं ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कनेक्शन है। सर हमारे पड़ोसी है तो कनेक्शन तो होगा सर। सही है जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मिनिस्टर साहब से सवाल किया गया था कि इज इट अफेक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन मोटर व्हीकल टैक्स डिपार्टमेंट, एक्स्ट्रा अमाउंट इज बीइंग चार्ज फ्रॉम पीपल, जिसके ऊपर बड़ा जोरदार जवाब स्टार्ट नो से हुआ है। एंड यू आर नॉट हैप्पी विद इट? नहीं सर, मैं आपको सवाल करूंगा इनसे और अपने जाती सर्वे पे बात नहीं, करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जो जवाब उन्होंने दिया यू आर नॉट हैप्पी विद इट ना, कि इसलिए तो आप सवाल कर रहे हैं। सर पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा सर, अब मैं आपको ये सवाल मेरा ये सर कि इन्होंने बताया है कि इनकी मिनिस्ट्री और इनके डिपार्टमेंट में करप्शन नाम की कोई चीज नहीं है, और बात हो रही है सर कि गाड़ी को जब आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो जाहिर है कि ये बता रहे हैं कि करप्शन नहीं होती है। मेरा ये सवाल है कि सर जब कोई शख्स अपनी गाड़ी रजिस्टर कराने जाता है और वो फिजिकल कराने जाता है तो फिजिकल कराने वाला ऑफिसर जो है वो 2000 रुपए क्यों लेता है और उसके बाद स्टैंप लगा देता है? उसके बाद जब केस जाता है अप्रूवल के लिए तो अप्रूवल वाला जो ऑफिसर है वो 2000 रुपए क्यों लेता है और फिर उसके ऊपर स्टैंप लगाता है? और तीसरा जब कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी जाती है ऑफिशियली है जी सर, और ऑफिशियली नहीं, ये 2 नंबर जो होती है रिश्वत, उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद रिश्वत की आप बात जी, कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी जब जाती है रजिस्ट्रार के पास, कंप्यूटर रजिस्ट्रार के पास, तो 2000 रुपए वो रजिस्ट्रार क्यों लेता है? उस हिसाब से सर टोटल 6000 रुपए एक गाड़ी के ऊपर रिश्वत देनी पड़ती है। और इसकी जरा अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें जो कि इन्होंने बताया है सेकंड क्वेश्चन में, कोई पता नहीं 1 लाख कितनी 39,000 जो गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, तो उसके हिसाब से कोई 8 या 9 करोड़ रुपए सिर्फ साल के अंदर रिश्वत इनके डिपार्टमेंट ने ली है। और जब मैं अपनी गाड़ी रजिस्टर कराने गया था तो इनके टेबलों से इनका स्टाफ भाग रहा था, जब पीछे वाला आदमी आगे इनके कान में बता रहा था कि खुर्रमशेर जमान है। इनको मैंने रिपोर्ट भी किया था। ये सर रोजाना की बुनियाद के ऊपर जितनी गाड़ियां एक्साइज डिपार्टमेंट में जाती हैं, लंबी स्पीच आप कर रहे हैं, there is no supplementary. अब ये बताएं कि ये उनके लिए क्या करेंगे जो This is हर no गाड़ी के ऊपर supplementary at 6000 all. रुपए दी जा रही है। ये करप्शन नहीं है ये क्या तो सर? आप तकरीर कर रहे हैं। आप सप्लीमेंट्री इज अ वेरी ब्रीफ
मेरे ख्याल में खुरम ब्रोकरी का काम करता था पहले, इतने रेट्स इसको पता है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑगस्ट हाउस में खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं, और कोई नहीं, सिविक सेंटर जब ये गए थे कोई नहीं भागा था, खुरम शेर जमाना है, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। ये अपने आप को इतना हाईलाइट ना करें। ये जाते हैं फूड डिपार्टमेंट, फूड अथॉरिटी को भी धमकियां देते हैं, इनका काम है अपना इधर बैठे अपना काम करे। कहाँ की बातें कहाँ ले जाता है सर, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी ये स्टेटमेंट दी है बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। जी सर सवाल था ही नहीं तो जवाब क्या दूंगा। थैंक यू स्पीकर साहब। सर जब सवाल था ही नहीं तो जवाब क्या दूंगा। बैठे हुए सवाल को आप जवाब देंगे तो फिर ऐसे ही होगा। जी बोले। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि ये इन्होंने कहा है कि करप्शन कोई नहीं है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के तमाम अखबारों में न्यूज छपी कि जो नॉन कस्टम्स गाड़ियां होती हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स पे गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं, और एक जो आपका मॉडल कस्टम्स कलेक्टर है उन्होंने कोई कार्रवाई की, और जो प्रोविंशियल एमआरएस हैं उसमें से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग पकड़े गए इसमें, क्योंकि वो फेक अकाउंट्स आ जाता है, माजरत से फेक डॉक्यूमेंट्स पे वो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, और ये पिछले हफ्ते की ये न्यूज है। तो मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि वो जो शॉर्ट करें अभी आप तकरीर मेरा करें। सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि जो 2 दर्जन से लोगों को ज्यादा इनको बुक हुए हैं उस केस में, उस पे क्या अपडेट है और उस पे इनकी मिनिस्ट्री ने क्या एक्शन लिया है। सर ये आज से 3 महीने पहले कस्टम्स वाले ने हमें लेटर लिखा था, तो कस्टम की टीम और हमारी टीम ने बैठकर सारा डेटा चेक किया। गाड़ियों का जो डेटा उनके पास था, जो डेटा हमारे पास था, उनमें से 2 दर्जन तो नहीं, कम बेसिकली 2-4 गाड़ियां निकली थी, और उस पर अभी तक इंक्वायरी चल रही है। जो भी इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। जी जावेद हनीफ साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा ख्याल है खुरम शेर जमान और जो हमारे जितने कलीग्स हैं उन्होंने मिनिस्टर साहब का जवाब ठीक से पढ़ा नहीं है। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि देयर इज नो लॉट ऑफ करप्शन, मतलब ज्यादा करप्शन नहीं है, कम करप्शन है यहाँ पे, जो जवाब दिया है सर। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये कम करप्शन कितनी है। सर लगता है जावेद भाई को अपने नौकरी के दिन याद आ गए जब लॉट ऑफ करप्शन करते थे ये। आई थिंक इनको वो दिन याद आ गए। जी सिद्रा इमरान। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है कि इट इज रियली गुड टू सी कि बड़ा जैसे सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड कि हमारा ये डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज हो गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो लोग जिनके टैक्स ड्यू हो जाते हैं, आपकी तरफ से, सिस्टम की तरफ से उनको कोई इंटिमिडेशन या अलर्ट जाता है कि ये आपका चालान है, ये आपका टैक्स ड्यू है, ताकि वो अप्रोच करें नेशनल बैंक को या इदारों को और टाइमली अपने सबमिट करें न्यूज, ताकि हमारे रेवेन्यू जो है वो टाइमली इंक्रीज होता रहे और हम अपने टारगेट्स को अचीव करते रहें। तो आपका कंप्यूटराइज कोई ऐसा अलर्ट का मैकेनिज्म है, कोई सिस्टम है जिनके टैक्सेस ड्यू हो जाए उनको अलर्ट करने का, इन्फॉर्म करने का? थैंक यू। नॉट जी, कोई ऐसा सच सिस्टम नहीं है, मगर हम अखबार के थ्रू रोड चेकिंग अनाउंस करते हैं एवरी 3rd क्वार्टर में कि अभी एक्साइज डिपार्टमेंट रोड चेकिंग करेगा। तो रोड चेकिंग के दौरान काफ़ी गाड़ियां रोकी जाती हैं जिनके टैक्सेस ड्यू होते हैं, उनको बंद भी किया जाता है, इम्पाउंड भी किया जाता है। और जब वो नहीं बिल्कुल वो अखबार के थ्रू हम करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो तो अपना टैक्स काइंडली भर दें, क्योंकि रोड चेकिंग के दौरान जब उनको रोका जाता है तो उनकी गाड़ी भी इम्पाउंड होती है, या तो उधर ही खड़े खड़े उनसे टैक्स की पर्ची भी दी जाती है, टैक्स भी वसूल किया जाता है। तो एक प्रॉपर सिस्टम है उस चीज का मॉनिटरिंग का सर हमारे पास। जी जुल्फिकार शाह साहब। सर मेरा मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि पिछली हुकूमत में एक एमनेस्टी स्कीम खुली थी, उसमें जो लोगों ने टैक्स भरे थे, क्या स्कीम थी? एमनेस्टी स्कीम जो थी, अच्छा। उसमें गाड़ियां उन्होंने एमनेस्टी में जो काबिली गाड़ियां थी वो लेके उन्होंने की, वो कहते हैं कि वो गाड़ियां आप ट्रांसफर करवाने जाएं तो वो ट्रांसफर नहीं होती। तो काफी ये मसला है। तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना ये चाहूंगा कि तो वो हो सकती है ट्रांसफर, नहीं हो सकती जिन लोगों ने लिए हैं? क्यों आपके पास है क्या कोई? सर मेरे पास तो नहीं है, पूछना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से। काफी लोग
पिछले दौर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एमनेस्टी स्कीम निकाली थी गाड़ियों के हवाले से, जो नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां हैं उनके ऊपर ड्यूटियां चलिए, दी तो थी। कस्टम एक्ट में होगा ना। जी सर, बिल्कुल वो हुआ था, और वो गाड़ियां फिर हमें जब कस्टम से हमने वेरीफाई किया, फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया था एमनेस्टी का, तो वो गाड़ियां एमनेस्टी वाली जब हमारे पास आई तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से जब रिकॉर्ड वेरीफाई किया तो फिर उनको रजिस्टर किया। मगर अब रिसेंटली उसके ट्रांसफर्स पर बैन लगा हुआ है, और ये जैसे ही बैन उठेगा तो फिर ये ट्रांसफर हो जाएंगी। हाल फिलहाल उस पर बैन है सर। हाल फिलहाल आप रोक के रखें, फिर जब ये होगा तो फिर आप ले आए। क्वेश्चन नंबर 1409 रबिस्तान behalf. खान जी। ऑन हिज बिहाफ ऑन हिज बिहाफ। सर, मेरी गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब कोई पर्सनल जो है जवाब ना दें, मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से इनसे सवाल करूंगा और इनके नहीं, डिपार्टमेंट के देखिए, लिए बात आप करूंगा। तकरीर ना करें, आप प्रिसाइसली एक हाँ, बिल्कुल। शॉर्ट सप्लीमेंट्री पूछें। मेरा नाम अगर आप लेके ना तकरीर जवाब करेंगे दें। तो फिर वहां से भी तकरीरी जवाब नहीं, मिलेगा नहीं। आपको। सर, मैं देखें इनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड आप सवाल कर लें, करूंगा। सवाल मैं इनकी कर कोई लें। जाती ओके, जिंदगी पे सवाल सवाल कर नहीं लें। कर रहा हूं, इसलिए ये नाम लेके जवाब ना दे मुझे। जी। क्वेश्चन नंबर 1409 आंसर में भी टेकन एज रेड। सर, इनसे कहीं पढ़ के सुना दें। जी। सर ये क्वेश्चन पढ़ ले, मैं आंसर पढ़ लेता हूँ।